نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز صلابہ و تعلیمات، آج ہمارا موضوع ہے نکاح میں نوجوانوں کی اصلاح و فلاح. باری تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا فانکحوا ما طاب لکم، فرمایا جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو. نکاح کے عمل کو اسلام میں عبادت کا درجہ حاصل ہے. نکاح کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان جسمانی اور نفسانی تعلق قائم ہوتا ہے. نکاح میاں بیوی کے لیے تقویٰ کا لباس بنتا ہے، ان کی زندگی کی پاک دامنی کی بنیاد بنتا ہے. نکاح عمومی طور پر انبیاء و رسل کی سنت ہے اور بالخصوص سید المرسلین خاتم النبیین کی سنت مبارکہ ہے. یہ نکاح کسی مرد و عورت کے لیے فرض، واجب اور مستحب کا درجہ حسب ضرورت اختیار کر جاتا ہے. اگر کسی کنوار فرد کو مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو اس کے لیے یہ نکاح زندگی میں فرض ہو جاتا ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نکاح خاندانی زندگی کی اساس بنتا ہے. نکاح کے بعد مرد و عورت کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور انہیں نئے نئے مسائل حیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسلامی عبادت میں اور اسلامی عبادات میں نکاح کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حق العبد، اس کی ادائیگی ہر انسان پر اسی زندگی میں لازم ہے. حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی معافی نہیں ہے. حقوق العباد کو حق تلفی سے محفوظ کرنا بندے کی اولی ذمہ داری ہے. عقد نکاح دو انسانوں کو میاں بیوی کے تعلق میں قائم کرتا ہے اور پھر یہ عقد ایک دوسرے پر حقوق کو لازم کرتا ہے. اور ان حقوق کو نبھانا ایک دو دن کی بات نہیں ہے بلکہ ساری انسانی زندگی کا مسئلہ ہے. اگر میاں بیوی باہمی حقوق کو بحسن و خوبی سر انجام دے تو ان کی زندگی بڑی ہی خوشگوار اور بڑی ہی احسن قرار پاتی ہے. حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جب ہم لفظ نکاح پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس کا حقیقی معنی ایک دوسرے میں ضم ہونے کے ہے. اسی لفظ نکاح سے دوسرا معنی مجازن
عقد کا بھی لیا جاتا ہے۔ اسی معنی میں یہ لفظ آیات قرآنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے ارشاد فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو۔ اس آیہ کریمہ میں نکاح سے مراد عقد ہے۔ عقد نکاح میں بھی ضم ہونے کا، عقد نکاح میں بھی ضم ہونے کا معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے۔ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت دونوں عقد نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں ضم ہو جاتے ہیں اور باہم جڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے فقہائے اسلام نے عقد نکاح کی اصطلاحی اور شرعی تعریف یہ کی ہے کہ نکاح مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں مرد اور عورت اپنی فطرتی، طبعی اور نفسانی خواہشات کے لیے ایک دوسرے سے استمتاع کر سکتے ہیں، باہم ایک دوسرے کے لیے درجہ علت پا جاتے ہیں، اور ان کے عقد نکاح کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد کا نسب پھر ان کے درمیان ثابت ہو جاتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نکاح انسانی زندگی میں کیوں کر ضروری ہے؟ جب اس حوالے سے ہم سوچتے ہیں تو ہمارے سامنے عقد نکاح کے متعدد فوائد اور حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ نکاح کے ذریعے نسل انسانی کو ارتقاء ملتا ہے، گویا نکاح نسل انسانی کی بقا کا ضامن بن جاتا ہے، اور نکاح سے مرد اور عورت دونوں کے کردار کی حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح کے ذریعے عورت معاشرے میں زیادہ عزت کے ساتھ جی سکتی ہے، اور اس کی ذات پر ایک سرپرست فرد اسے میسر آ جاتا ہے، اور وہ اس کی ضروریات حیات کو پوری کرنے لگتا ہے، اور اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اور اس کے اخراجات اپنے سر لیتا ہے، اور اس کی حاجات کی تکمیل کے لیے وہ اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنے لگتا ہے۔ نکاح کے ذریعے مرد اور عورت زنا جیسے کبھی فعل سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نکاح مرد و عورت کے لیے اسلام کے پسندیدہ افعال میں سے ہے۔ نکاح کا عمل انسان کی نکاحوں کو پاک کرتا ہے، اور نکاح کرنے والے مرد اور عورت کا کردار احسن اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ نکاح کا عمل انبیاء علیہ السلام کی سنن میں سے ہے۔ اربع من سنن المرسلین میں سے ایک عمل نکاح کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام افراد اور بطور خاص یا معاشر الشباب کے ذریعے اپنی امت کے نوجوانوں کو یہ ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور یہ تاکید کی ہے النکاح من سنتی، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، رواہ ابن ماجہ فی سننہ۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نکاح گویا زندگی گزارنے کا طریقے رسول ہے، اور اس طریقے رسول کو اپنانا ہی ایک صاحب ایمان کا دینی امتیاز اور اس کا ذاتی تشخص ہے، اور اس سے صرف نظر کرنا طریقے رسول کو چھوڑنا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے اور اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوجوانان امت کو مزید نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من احب فطرتی فلیستن بسنتی ومن سنتی النکاح، رواہ امام بہقی فی کتابہ۔ فرمایا جو میری فطرت سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت پر عمل کرے، اور میری سنت نکاح ہے۔ حاضرین ناظرین گرامی قدر، نکاح کا عمل ایک انسان کو معاشرے کا ذمہ دار فرد بناتا ہے۔ نکاح سے پہلے وہ فرد
اپنی ذات کے لیے جیتا تھا، اب بعد از نکاح وہ اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے اس معاشرے میں جیتا ہے، اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی میں ذریعہ معاش کو تلاش کرتا ہے، اور زندگی میں جد و جہد کرتا ہے، اور ان کے سارے گھر والوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اور ان کے جملہ انسانی حقوق کو پورا کرتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ازدواجی زندگی انسان کو مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ عقد نکاح انسان کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں کامل کرتا ہے اور اپنی فرائض کی ذمہ داری کا ذمہ دار بناتا ہے۔ نکاح کے عمل کے ذریعے انسان کا نفس بہت سی برائیوں سے اور بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق میں سب سے زیادہ مستحسن، مسنون اور مفضول اور افضل عمل یہ نکاح ہے۔ اس افضل عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بنایا ہے۔ صحابہ اکرام نے بھی اتباع رسالت میں اس افضل عمل کو اپنی زندگیوں میں اپنایا ہے۔ صحابہ اکرام اپنی زندگیوں میں ہمیشہ افضل کام کو، اعلیٰ کام کو، مسنون عمل کو اختیار کرتے تھے۔ اس بنا پر نکاح سے ہٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش حیات سے کنارہ کش ہونا ہے۔ نکاح کو ترک کر کے کسی اور راستے کو اپنانا ناپسندیدہ فعل ہے۔ نکاح نہ کرنے والے اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، نتیجتاً وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ زنا فعل حرام ہے، یہ انسانی معاشرے میں فساد کا باعث بنتا ہے، اور یہ انسانی نسب کو ناپاک کرتا ہے۔ زنا فعل حرام ہونے کی وجہ سے معاشرے میں ہر طرح کے فساد کا باعث بنتا ہے، انسانی نسب کو ناپاک کرتا ہے۔ یہ زنا انسان کو وراثت سے محروم کرتا ہے، معاشرے میں انسان کی عزت اور تشخص کو کم کرتا ہے۔ زنا کا فعل انسان کو مقام انسانیت سے گراتا ہے اور بربادی عالم کا باعث بنتا ہے۔ زنا کے فعل حرام کا ارتکاب کرنے والا ہر حرام فعل کو اپنی زندگی میں اپنانے لگتا ہے، اختیار کرنے لگتا ہے۔ زنا کا فعل معاشرے میں فتنہ اور فساد اور جھگڑے اور تنازعات کا باعث بنتا ہے، اور معاشرے میں انتظامی فسادات کو اور جھگڑوں کو طول دیتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس فعل حرام سے بچنے کے لیے انہیں نکاح کا حکم دیا ہے کہ تم کبھی بھی زندگی میں اپنی نوجوانی میں زنا کی طرف نہ جاؤ بلکہ نکاح کی طرف جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر ایک نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمائے، یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، رواه بخاری فی کتاب صحیح البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استعداد رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح سب سے زیادہ نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو نکاح کی، اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ
नफ्स की शामत को तोड़ता है और नफ्स को गुनाहों में पड़ने से बचाता है। हाज़रीन और नाज़रीन इकरामी कदर, निकाह का सबसे बड़ा फायदा जहां नस्ल इंसानी का इर्तिका है, वहां इस निकाह के जरिए मर्द और औरत को माशरती और समाजी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए एक जोड़ा बनाया जाता है और इस जोड़े में बाहम मोहब्बत और मवद्दत पैदा की गई है ताकि ये अपनी आयली, अपनी खानदानी जिम्मेदारियों को बतरीके अहसन अदा कर सके। मर्द और औरत की जिनसे मुखालिफ के तौर पर तख्लीक का ये फेल खुदाबंदी बजाते खुद अल्लाह की मार्फत की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए बारी ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून। फरमाया अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे जोड़े पैदा किए, औरतें पैदा की, ताकि उनकी तरफ माइल होकर इज़्दिवाजी जिंदगी में तुम सुकून हासिल करो और तुम में बाहम मोहब्बत और रहम दिली पैदा कर दी है। जो लोग इन बातों पर गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए बहुत सी निशानियां हैं। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, इस्लाम में हर जायज अमल की भी एक हद है और उस हद के अंदर वो अमल जायज है। अगर वो अमल उस हद से तजावुज कर जाए तो वो हराम हो जाता है। निकाह हर औरत से नहीं हो सकता, कुछ औरतों से निकाह मर्दों के लिए हराम है जिनको कुरान ने मुहर्रिमात से का लक़ब दिया है और मुहर्रिमात का उन्वान देकर उनका तज़किरा किया है। और इन रिश्तों और मुहर्रिमात का जिक्र करते हुए बारी ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, अपने बाप की मनकूहा औरतों से निकाह न करो, वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसा, जिनसे तुम्हारे वालिदैन ने वालिद ने निकाह किया है उन औरतों को कभी अपनी बीवी न बनाना, वो तुम्हारी माएँ हैं। और इसी तरह मजीद फरमाया, जो तुम्हारी माएँ हैं, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी फुफियां हैं, तुम्हारी खालाएं हैं, तुम्हारी भतीजियां हैं, तुम्हारी भांजियां हैं, तुम्हारी रजाई माएँ हैं और तुम्हारी रजाई बहनें हैं, तुम्हारी सासें हैं, ये सब औरतें तुम्हारे निकाह में तुम्हारे लिए हराम कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ औरतों की पहली औलादें भी और तुम्हारी बहुएं भी, और एक निकाह में दो बहनों का इकट्ठा करना भी, बांता जमाऊ बैनल उख्तैन, ये भी रिश्ता तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। इन हराम रिश्तों से निकाह करना बहुत बड़ी बेहयाई है और बहुत बड़ा गुनाह है और आम माशरती और समाजी रवायात के सरासर खिलाफ है। इन्नहु कान फाहिशतन व मक्तन व साअ सबीला, ये हराम रिश्तों से निकाह ये निहायत ही बेहयाई है, अल्लाह की नाराजगी और नाखुशी की बात है और बहुत बुरी रवश हयात है। हाज़रीन व नाज़रीन इकरामी कदर, इसी तरह कुरान ने बयान किया है शादीशुदा औरतें भी तुम्हारे ऊपर हराम है, वल मुहसनातु मिनन निसा, और इसी तरह मुशरक औरतें भी, उनसे भी तुम्हारा निकाह फरमाया नाजायज है, हराम है। वला तनकिहुल मुशरका हत्ता युमिना, यहाँ तक कि वो मुशरक औरतें, वो काफिर औरतें ईमान ले आए। इन सारे मुहर्रिमात रिश्तों के अलावा बकिया रिश्तेदार और दीगर औरतें भी तुम्हारे लिए फरमाया वो सारी की सारी इन मुहर्रिमात के अलावा वो सारी हलाल है। और इसका जिक्र कुरान ने यूं किया, वहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन, और इन मुहर्रिमात रिश्तों के सिवा बकिया औरतें तुम्हारे लिए निकाह के लिए हलाल है। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, इसी तरह
माल खर्च करके उनका महर देकर फरमाया उनसे निकाह कर लो। निकाह की अहमियत और मकसद को मजीद वाज़ेह करते हुए इरशाद फरमाया गैर मुसाफिकीन वला मुत्तखिज़ी अख़दान, निकाह बदकारी से बचने के लिए करना है। निकाह छुपी हुई दोस्ती के जरिए गलतकारी और बदकारी से बचने के लिए करना है। निकाह का मकसद इफ़्फ़त है, पाकीज़गी है, पाक दामनी है। निकाह नसब की पाकीज़गी और तहारत के लिए होता है। जो इन मकासद निकाह को सामने रखते हुए शादी करता है वो अपने दामन को दागदारी से, ऐबदारी से बचाता है, अपने शबाब को पाकीज़गी से आरास्ता करता है। ज़ना और बदकारी से सख्ती से इज्तिनाब करने का इस्लाम हुक्म देता है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फन के अमर को अपने वजूद पर नाफिज करने को लाजिम ठहराता है। जिसे निकाह में मुब्तला होने का अंदेशा होता है उस पर निकाह करना फर्ज हो जाता है और खुद को अक़्द निकाह से वाबस्ता करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे नौजवानों से अल्लाह का वादा है, अगर तुम निकाह के वक्त तंग दस्त होगे तो निकाह के जरिए बारी ताला तुम्हें गनी कर देगा, और अगर तुम मफलूकुल हाल होगे, गरीबुल हाल होगे, तो बारी ताला अपने फजल से तुम्हें खुशहाल कर देगा, तुम्हारी गुर्बत को अमारत से बदल देगा और तुम्हारे फाके को माली इफाके से तब्दील कर देगा। इसलिए कि निकाह की बरकत और रहमत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया अन यकूनु फुकरा युगनिहुल्लाहु मिन फदलिही वल्लाहु वासिउन अलीम। अगर वो निकाह करने वाले मुफलिस होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से खुशहाल कर देगा। अल्लाह बहुत वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, बारी ताला ने मोमिन मर्द और मोमिन औरत को एक दूसरे का खैर खा और एक दूसरे का दोस्त बनाया है। ईमान के बायस दोस्ती और खैर खाई का सबसे ज्यादा और पहला इतलाक मियाँ बीवी पर होता है। इनमें मौजूद ईमान का नूर इनको बाहम एक दूसरे का मुखलस दोस्त बनाता है, एक दूसरे का जानसार बनाता है, एक दूसरे का वफादार बनाता है। इसलिए इरशाद फरमाया वल मोमिनून वल मोमिनात बादुहुम औलियाओ बादिन। फरमाया मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, बारी ताला ज़ाहिरी असबाब को देखने वाले उन लोगों को जो शादी के लिए इंतजार करना चाहते हैं और अपने हालात की आसूदगी और खुशहाली के मुंतजिर रहते हैं और अच्छे दिनों की उम्मीद में शादी के अमल को मुअख्खर करते रहते हैं, उनको भी पाक दामनी की शर्त के साथ निकाह में ताखीर की इजाजत देता है और उनको भी निकाह के कसद को कायम रखने पर माली फराखी और माली कुशादगी की खुशखबरी देता है। इरशाद फरमाया वल यस्ताफिफिल्लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युगनिहुमुल्लाहु मिन फदलिही, और जिनके पास निकाह की इस्तेदाद न हो और वो पाक दामनी इख्तियार करे यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर दे। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, अक़्द निकाह मर्द और औरत के लिए एक रिश्ते का इंतखाब है और इस रिश्ते के इंतखाब को भी मर्द और औरत की मर्जी, रजा और पसंद और नापसंद और उनकी आजादाना चाहत और अदम चाहत और उनके अपने इंतखाब और अदम इंतखाब पर मुनहसिर किया है। इस इज़्दिवाजी रिश्ते के इंतखाब में खानदान की जिम्मेदारियों को भी शामिल करते हुए औलिया, सरपरस्तों और वालिदैन की रजा और इजाजत को भी लाजिम किया है ताकि मर्द और औरत के फैसले को हर किस्म की माशरती, समाजी ऐब व नक्स से महफूज किया जा सके और वो जज्बाती रोह में बहकर कोई अपनी जिंदगी के बारे में गलत फैसला न कर ले। वालिदैन
की खैर खाई और दूर अंदेशी उस फैसले को छानबीन के अमल के जरिए इंतहाई मोतबर बना देती है, मुस्तनद बना देती है। इसलिए बारी ताला ने इंतखाब रिश्ता का ज़ाब्ता बयान करते हुए कुरान में इरशाद फरमाया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, बस तुम्हें जो औरतें पसंद हो उनसे निकाह करो। आदरीन व नाज़रीन इकराम कदर, निकाह में सबसे बड़ी जिम्मेदारी मर्द की होती है। इसलिए कायदा तगलीब के तहत उनको मा ताब लकुम का इख्तियार दिया है, और यही इख्तियार इसी आया करीमा के तहत औरतों को भी इंतखाब रिश्ता में मर्दों के बराबर हासिल है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जो पहले से शादीशुदा है, शौहर दीदा है, सय्यबा है, और वो शौहर के इंतकाल की वजह से बेवा हो गई है, और अब जब दोबारा किसी और शख्स से उसका निकाह किया जाएगा तो जब तक वो बेवा, वो शादीशुदा, शौहर दीदा साफ साफ अल्फाज में इजाजत न देगी तो उसका निकाह मुनक्किद न होगा। जबकि वो औरत जो अभी कंवारी है, अभी बाकरा है, और उसकी पहले शादी नहीं हुई है, उससे भी शादी से पहले इजाजत लेना होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नन नबिय्या क़ाल ला तुनहा अल-अय्याम हत्ता तस्तअमरा वला तुनहा बिक्र हत्ता तस्ताज़िना। क़ालू या रसूलल्लाह कैफ़ इज़्नुहा क़ाल इन तस्कुत। रवाहु इमाम बुखारी फी किताबिही सहीह बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेवा औरत का उस वक्त तक निकाह न किया जाए जब तक उससे साफ साफ अल्फाज में इजाजत न ले ली जाए। इसी तरह कंवारी लड़की का भी फरमाया, निकाह न किया जाए जब तक वो इजाजत न दे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो इजाजत किस तरह देगी कंवारी लड़की? आपने फरमाया, उसकी इजाजत ये है कि वो निकाह के वक्त जब उससे पूछा जाए रिश्ते के वक्त तो उस वक्त खामोश हो जाए। उसका खामोश होना उसकी रजा की अलामत है। आदरीन व नाज़रीन इकराम कदर, अब सवाल ये है कि रिश्ता निकाह के इंतखाब की बुनियादें क्या क्या है, किन किन मयारात की बिना पर रिश्ते का इंतखाब किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस हवाले से भी कामिल और अकमल रहनुमाई अता करते हुए इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तुनकाहुल मरअ लिअर्ब लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फ़अज़फ़र बिज़ातिद्दीन तरबत यदाका। रवाहु इमाम बुखारी फी सहीहिही। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी औरत से चार खूबियों में से किसी एक खूबी की बिना पर अमूमन निकाह किया जाता है। फरमाया, उसके माल और उसके माल की वजह से, उसके खानदानी शर्फ की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से और उसकी दीनदारी की वजह से। फरमाया, तुम दीनदारी को निकाह के वक्त रिश्ते के इंतखाब में तरजीह दो, वरना तुम्हारे हाथ खाकलूद होंगे। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, इंतखाब रिश्ता की फी ज़माना मयारात यही चार रहे हैं, और वो औरत और उसका खानदान माल और दौलत वाला हो। सबसे पहला मयार ये देखा जाता है, माल तमाम दुनियावी हाजात और ज़रूरियात को पूरा करता है, और दूसरी सूरत उस औरत से रिश्ता उसके हसब और नसब की बिना पर किया जाता है, जो अपने नसब में अरफा हो, जो अपने हसब में बुलंद हो, ताकि उससे पैदा होने वाली औलाद खानदानी औसाफ से मामूर हो और वो अपने अंदर खानदानी वकार और वजाहत रखने वाली हो, और वो औरत अपने जाती किरदार में आला हसब और अरफा किरदार की मालिक हो और खूब समझदार हो। और समझदार औरत के साथ जिंदगी गुजारना आसान होता है, बेसमझ औरत के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है। जहां बेसमझी होगी वहां लड़ाई झगड़ा फसाद होगा और गैर जिम्मेदारी के मामलात होंगे, जिससे
जिससे इंसानी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। सॉरी हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, इसी तरह तीसरी वजह इंतखाब रिश्ते की ये है कि वो औरत हसीन व जमील हो। मर्द और औरत का जमालियाती हुस्न भी निकाह के अमल को मजबूत करता है। चौथी वजह इंतखाब रिश्ता की ये है, वालिदीनिहा फाज़फर बिज़ातिद्दीन, उस औरत का इंतखाब निकाह के लिए दीन की बिना पर किया जाए, उसका और उसके खानदान का दीन पर कारबंद होना और जिंदगी में दीनी अक़दार को अपनाना और खानदान की दीन पसंदी, कनात पसंदी इज़्दिवाजी रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूत करती है। और ये चौथी सूरत इंतखाब रिश्ता के लिए मुअस्सर आमिल है और यही इसके किरदार को भी आला और अरफा बनाती है और ये दीनी कदर रिश्ते के इस्तेकाम में मजबूती का बायस बनती है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चौथे अमल को तरजीह देने वाले शख्स को इस इज़्दिवाजी जिंदगी की कामयाबी की नवीद सुनाई है। और ये निकाह के लिए हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, औरत को महर भी अदा करना जरूरी है। महर निकाह के वक्त एक औरत का तकरीमी हक है जिसकी अदायगी के बगैर निकाह का अमल कामिल तौर पर दुरुस्त नहीं होता है। महर औरत से निकाह के वक्त ही अदा करना बेहतर अमल है और या इसको औरत को खलवत से पहले पहले अदा करना इंतहाई मौजू है। इसलिए कुरान कहता है फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना फातूहुन्ना अजूरहुन्ना फरीदतन, और जिन औरतों से तुम निकाह कर चुके हो तो उनका महर जो मुकर्रर किया है उसे अदा करो। इसी तरह कुरान ने दूसरे मकाम पर महर को सदका तुम नेहला से बयान किया है। इरशाद फरमाया वातुन निसा सदकातिहिन्ना नेहला, औरतों के महर को खुशी से खुश दिली से अदा किया करो। कुरान और हदीस में महर के लिए और मुतअद्दिद अल्फाज भी आए हैं, उनमें से एक सिदाक है, दूसरा नेहला है, तीसरा फरीजा है, चौथा हेबा है, छठा अजर है, सातवां उकर है और आठवां अलाइक है और नौवां तौल है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, जब हम अहद रिसालते बाद में निकाह के अमल के हवाले से तालीमात इस्लामी का मुताला करते हैं तो हमें कोई भी निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में महर के बगैर मुनक्कद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को पाबंद किया करते वातुन निसा सदकातिहिन्ना निहला, कि औरतों को उनके महर खुश दिली से दिया करो। फुक़हाए किराम का इस बात पर इजमा है कि महज अक़्द निकाह से मर्दों पर औरतों के हक में महर वाजिब हो जाता है। निकाह चूंकि एक मुत्तहिम बिशान अक़द है जिसके मकाम और मर्तबे के इज़हार के लिए महर मुकर्रर किया जाता है। अगर किसी औरत का महर मुकर्रर ना हो सके तो फिर उसके वालिद की जानिब से औरतों का महर मिसल देना होगा, जिनमें उसकी फुफियां और उसकी बहनें शामिल हैं। जितना महर उनका होगा और वही इस औरत के लिए महर मिसल होगा। महर की अदायगी में औरत की इज्जत और तकरीम है और आइली जिंदगी में इस तोहफे और मजहबी फरीजे के जरिए से एक हुस्न आइली जिंदगी में, इज़्दिवाजी जिंदगी में पैदा होता है और महर की अदायगी से मियाँ बीवी के माबैन हुस्न माशरत का ताल्लुक कायम होता है। निकाह से जहां मर्द के लिए औरत पर उसकी तमलीक साबित होती है, वहां महर की अदायगी के जरिए औरत की कद्र मंजिलत जाहिर होती है। औरत हर लिहाज से इस्लामी और इंसानी माशरे में काबिल एहतराम है। महर के बगैर इस पर मर्द का हक साबित करना इसके लिए सरासर एहानत है। अनाफ के नजदीक महर की कम अज कम मिकदार लामहरा दून आशरत दराए कि 10 दिरहम कम अज कम अनाफ के नजदीक है और मालकिया के नजदीक महर की कम अज कम मिकदार चौथाई खालिस
दीनार है या खालिस चांदी के 3 दिरहम है, जबकि शवाफे और अनाबला के यहाँ बाहर की कम अज कम मिकदार की कोई हद नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि हर वो चीज जो कीमत मुकर्रर किए जाने की सलाहियत रखती है वो हद के बाहर हो सकती है, बशर्ते कि वो इतनी कलील ना हो कि उसे सिरे से बाद ही तसव्वुर न किया जाए। आज़रीन व नाज़रीन किराम कदर, खुलासा कलाम की तरफ बढ़ते हुए अर्ज करूं कि निकाह इंसानी जिंदगी की नई शुरुआत बनता है। ये इंसान की जिंदगी को पाकीज़गी और तहारत देता है, ये इंसान के नस्ब को इर्तिका देता है, और ये इंसान की नस्ल में इजाफे का बायस बनता है, और ये इंसान को मुख्तलिफ खानदानों से वाबस्ता करता है और माशरती इस्तेकाम का सबब बनता है। निकाह के अमल के बायस खानदानी कुव्वत में इजाफा होता है, और निकाह इंसान को ज़हनी और जज्बाती सुकून देता है। इज़्दिवाजी जिंदगी के सबब इंसानी जोड़े मिलकर जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे के बेहतरीन मददगार साबित होते हैं। निकाह से इंसान को नेमते बका मिलती है। निकाह इंसान को दुनिया के नक्शे पर मिटने नहीं देता है, बल्कि इसके पाकीज़ा नस्ब को तसलसल देता है। निकाह में एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी तरगीब और रग़बत यह है कि निकाह सुन्नते अंबिया है और निकाह सुन्नते सय्यदुल मुरसलीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के अमल को पसंद किया है और अपनी उम्मत के नौजवानों को या माशर शबाब के ताकीदी कलिमात के साथ इसको अपनाने की भरपूर तरगीब दी है। और मुतअद्दिद हदीस में आपने फरमाया, अन्निकाह मिन सुन्नती, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीक है, निकाह मेरी रवश है, निकाह मेरी सुन्नत है। जो मुझसे है, जिसका मुझसे कुछ भी ताल्लुक है, वो निकाह को अपनी जिंदगी में इख्तियार करे। निकाह को छोड़ना, फरमाया मेरी सुन्नत को छोड़ना है। फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्ना, जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस सुन्नत को इंसानी जिंदगी की अमली हकीकत बनाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुक्म दिया, इन आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना, रवाहु इमाम बुखारी भी सही। फरमाया ज्यादा बरकत निकाह वो है जिसमें अखराजात कम से कम हो, वो निकाह जो सादा हो, तकल्लुफात से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा हो, जो नापसंदीदा रसूमात से और गैर मुताल्लिक हो, जो माशरती और समाजी तफाखुर से पाक हो, जो मुअज़्ज़ब इंसानों के लिए बोझ ना हो, जिसका इनेकाद बआसानी हो, हर गरीब और हर अमीर के लिए जिसका इनेकाद मुमकिन हो। वो निकाह किसी के लिए बहुत ज्यादा आर और किसी के लिए नाजायज इफ्तिखार का बायस ना हो। वो निकाह जो माशरे के हर नौजवान को पाकीज़ा जिंदगी फराहम करने का बायस हो, वही बाबरकत निकाह है, वही मिसाली जिंदगी का सबब है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, निकाह बजाते खुद एक शरई अखलाकी फरीजा है और इस फरीजे की अदायगी हर इंसान के लिए एक समाजी हैसियत भी रखती है, एक मजहबी हैसियत भी रखती है। निकाह का अमल नौजवानों को एहसास जिम्मेदारी से आशना करता है। हर इंसान जिम्मेदारी से अमूमी तौर पर भागता है, मगर जब वो निकाह की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लेता है तो अब इसका किरदार पहले से यकसर मुख्तलिफ हो जाता है। अब वो अपनी माशी और कफालती जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए मुतहर्रिक और फाल हो जाता है, और जिम्मेदारी ही नौजवान असर को निखारती है और इसकी शख्सियत को खूबसूरत बनाती है और इसके अंदर सब्र व ज़ब्त को और तहम्मुल व बर्दाश्त को पैदा करती है। निकाह नौजवानों को जिम्मेदार बनाता है और नौजवानी इंसान की कुव्वत और ताकत का अहने शबाब है, और इसके बाद की जिंदगी ढलता हुआ शबाब है। जब इंसान का अहने शबाब अहदे यादगार हो जाए तो उसकी कामिल जिंदगी एक मिसाल बन जाती है।
ایک نمونہ بن جاتی ہے نوجوانوں کو انسانی معاشرے میں۔ حاضرین و ناظرین اکرام قدر، وہی اہمیت حاصل ہے جو دل کو انسانی جسم میں حاصل ہے۔ اگر یہ دل درست ہو جائے تو سارا انسانی جسم درست ہو جاتا ہے، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارا انسانی جسم برباد ہو جاتا ہے اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا خبردار، انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا انسانی جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خرابی کا شکار ہو جائے تو سارا انسانی جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وهي القلب، فرمایا خبردار وہ دل، وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ دل ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہم جس مہذب اور منظم طبقے کو آج قوم کہتے ہیں، اور وہ قوم نوجوانوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ قوم کا اطلاق اول اور مصداق عدم نوجوان ہی ہے۔ اگر یہ نوجوان درست ہو جائے تو ساری قوم درست ہو جاتی ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا انسانی معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں کا سنورنا قوم کا سنورنا ہے، نوجوانوں کا فساد کا شکار ہونا پوری قوم کا فتنہ و فساد کا شکار ہونا ہے۔ نوجوان بچوں اور بچیوں میں حیا کا ہونا ان کے کردار کا بہت بڑا سرمایہ ہے، ان کا کردار ہی قومی کردار بنتا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ آج کے نوجوانوں کو اپنی دینی اور معاشرتی اقدار کا حیا کرنا ہے، اپنی نسلی اور خاندانی اور اسلامی روایات کا حیا کرنا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو اپنے معاشرے کی مثالی اور قابل تقلید اور عرفہ انسانی اقدار کا حیا کرنا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل ہی ہمارے معاشرے کو نظری، فکری اور عملی بنیادوں پر مضبوط و مستحکم بنائے گا، اور انسانی معاشرے کی تباہی کا آغاز، حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ہمیشہ ان کی اقدار کی تباہی سے شروع ہوتا ہے۔ آج پاکستانی معاشرے کی اقدار کے محافظ یہ نوجوان ہے، ان کا سنورنا قوم کا سنورنا ہے، اور ان کا بگڑنا قوم کا بگڑنا ہے، اور ان کا بے حیائی کا کردار، بد چلنی کا کردار، بری روش کا کردار، ان کا تعیشانہ کردار، ان کا غیر ذمہ دارانہ کردار معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور زندہ قوم کو مردہ قوم بنا دیتا ہے، اور قوم کی عظمت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بلا شبہ آج کے نوجوان کے کردار پر بڑے طاقتور اور بڑے زوردار حملے ہو رہے ہیں۔ وہ آج چاروں طرف سے نوجوان گھرا ہوا ہے، اس کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے تمام ابلیسی قوتیں متحرک ہیں۔ برائی کے لیے ماحول کو انتہائی سازگار بنا دیا گیا ہے۔ اس کے کردار کی عزت و رفت ہر وقت خطروں میں گری ہوئی اور پھنسی ہوئی ہے۔ ان حالات میں جوانی کو بے داغ رکھنا ہی انفرادی اور قومی کردار کو زندہ رکھنا ہے، اور یہی نوجوانی کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اسی لیے اقبال نے ایسے ہی نوجوانوں کو یہ دعا دی تھی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی بے داغ رہے، خدا کرے تیری جوانی بے داغ رہے۔ واہ دامان الحمد۔